All right. Now, watch now as we go on. The seven spirits. Saith he holds, in other words, holds his messengers. Messengers that will be anointed with Holy Spirit, with this same Holy Spirit that Paul, the first, was anointed with. The second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh, all of them are in his right hand. Amen. Oh, driving their power and their light from his right hand. तो ठीक है, अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सात आत्माएं कहती हैं, वो जो थामे रहता, दूसरे शब्दों में उसके संदेश वाहकों को थामे रहता है। संदेश वाहक जो पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक होंगे, उसी पवित्र आत्मा के साथ वो पौलुस जो पहला था अभिषिक्त था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सारे उसके दाहिने हाथ में हैं। ओह, अपने दाहिने हाथ से उनकी सामर्थ को और उनके प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। Now he ascended on high, and Philip said when he was dying, or Stephen said, I see heavens open and Jesus sitting at the right hand of God. I don't mean that God's got a great big right hand, Him sitting on it, but right hand means a right hand of power and authority. अब वो ऊपर उठा लिया गया और फिलिपुस ने कहा, जब वो मर रहा था, या स्तिफनुस ने कहा, मैं देखता हूं आकाश खुल गया और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ था। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का बड़ा दाहिना हाथ है और वो उस पर बैठा हुआ है, लेकिन दाहिने हाथ का अर्थ है सामर्थ और अधिकार। That body that God created would not suffer my Holy One to see corruption, neither I leave his soul in hell, but raised him up and set him in the stead of the Spirit on the altar. वो शरीर जिसे परमेश्वर ने बनाया था, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, न ही तू मेरे प्राण को अधोलोक में छोड़ेगा, लेकिन उठाकर खड़ा करेगा और वेदी पर आत्मा के स्थान पर उसे स्थित करेगा। Watch, when they seen him sitting on the altar and had the book in his hand, and no man on earth or beneath the earth or anywhere was able or worthy to even look at the book. देखो, जब वे उसे वेदी पर बैठा हुआ देखते हैं और उसके हाथ में पुस्तक थी, और कोई भी मनुष्य धरती पर या धरती के नीचे या कहीं पर भी पुस्तक को देखने में सक्षम या योग्य नहीं था, यहाँ तक उस पुस्तक को देखने के भी योग्य नहीं था। But a lamb that had been slain from the foundation of the world, way back at the beginning, when he first thought of this redeemed body, come and took it out of the right hand of him that sits upon the throne and sat out himself. Amen. There you are. That's the Scripture. It's just beautiful, see? लेकिन एक मेमना जैसे कि दुनिया की नींव डालने से लेकर घात हुआ था, बहुत पहले आरंभ में जब उसने पहली बार इस छुटकारा पाई हुई देह के बारे में सोचा, आकर और पुस्तक को उसके दाहिने हाथ से ले लिया जो सिंहासन पर बैठा था और बैठ गया स्वयं। आमीन, आप वहां हैं, यही वो वचन है। यह तो बस सुंदर है। देखें, Now, he that overcomes shall sit with me on my throne, as I have overcome and sat down on my Father's throne. In other words, I've tucked within my body the Holy Spirit. I overcome all the things of the world through the temptation by the Holy Spirit, and tuck over, and in Him dwells the fullness of the Godhead bodily. अब वो जो जय पाता है मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन पर बैठता है, जैसे कि मैंने जय पाई है और अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ। दूसरे शब्दों में, मैंने अपने देह के भीतर पवित्र आत्मा को लिया है। मैंने संसार की सभी चीजों पर जय पाई, परीक्षाओं में से होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा, और अधिकार को पा लिया है, और उसमें परमेश्वर की देह की परिपूर्णता वास करती है। All powers in heavens and earth is given unto my hands, he said. All the power, then God's powerless if he's another person. For the Bible said, Jesus said, after his resurrection, that all the power in heaven and earth both was given unto my hands. स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ पर दी गई है, उसने कहा। सारी सामर्थ, यदि वो दूसरा व्यक्ति है तो परमेश्वर सामर्थहीन है, क्योंकि बाइबल ने कहा, यीशु ने उसके पुनरुत्थान के बाद कहा कि स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ दोनों की मेरे हाथ में दी गई थी। And
And Jesus comes from heaven with 10,000 times 10,000s of His saints, and the Bible says that the heavens was empty for the space of a half hour. Where is this big fellow God then? See? He's in Christ. Sure. और यीशु अपने 10,000 गुना 10,000 संतों के साथ स्वर्ग से आता है, और बाइबल कहती है कि स्वर्ग एक आधे घंटे के लिए खाली था। तब ये महान व्यक्ति कहाँ पर है? वो परमेश्वर, देखा, वह मसीह में है, निश्चय ही। And as we overcome by the Holy Spirit like He had, we will sit with Him as He takes the earthly throne of David to sit and rule with Him just like He did up there. Amen. और जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा जय पाते हैं, जैसे उसने जय पाई थी, हम उसके साथ बैठेंगे, जैसा कि वह दाऊद के धरती के सिंहासन को लेता है, उसे बिठाने के लिए और उसके साथ राज्य करने के लिए, जैसे उसने वहां ऊपर किया था। आमीन। With power and authority over all the earth, the earth is groaning, waiting for the manifestations of the sons of God to be manifested. God's Son. सारी धरती पर सामर्थ और अधिकार के साथ सारी पृथ्वी, और वे पृथ्वी कह रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्र। Because after all, this world was not given for God to control. That's right. Who is the God of the earth? Man. That's His domain. Everything in the earth is subject to the man. Through sin He fell. Through Christ's redeeming power He comes back again. क्योंकि आखिरकार इस संसार को परमेश्वर के लिए नहीं दिया गया था कि नियंत्रित करे। आइए देखेंगे कि यह सही है। धरती का ईश्वर कौन है? मनुष्य। यही उसका अधिकार है। सब धरती में का सब कुछ मनुष्य के अधीन है। पाप के जरिए से वह गिर गया। मसीह की छुड़ाने की सामर्थ के जरिए से वह फिर से वापस आता है। That's right. Because the earth belongs to man, it was given to him, and he was ruler over everything. And all nature's groaning, waiting for that time that when the sons of God will be manifested again. Manifestations of the sons of God. यह सही बात है, क्योंकि धरती मनुष्य की है, यह उसे दी गई थी, और वो हर चीज के ऊपर अधिकार रखता था, और सारी सृष्टि कह रही है, उस समय की बाट जो रही है कि जब परमेश्वर के पुत्र फिर से प्रकट होंगे। ओह, वो मैं हूँ। ओह प्रभु, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण। Now, we better leave that right now, but the messengers are in His right hand, waiting. Wherever He sends them, they'll speak the same thing. For the Holy Spirit that was in Christ. Oh, praise the Lord. The Spirit that was in Christ. अब हमारे लिए बेहतर होगा कि इसे अभी छोड़ दें, लेकिन संदेशवाहक उसके दाहिने हाथ में है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जहाँ कहीं भी उन्हें भेजता है, वे उसी चीज को बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मसीह में था, ओह, वह आत्मा जो मसीह में था। When He left, He said, a little while and the world, cosmos, the Greek word, which means world order. Not the earth, the world. The order of the world. Will see me no more. जब वो चला गया, तो उसने कहा, थोड़ी देर रह गई है, और संसार, कॉस्मोस, ये ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है संसार की व्यवस्था, ना ही धरती की, संसार की व्यवस्था। मुझे अब और नहीं दिखेगा। Denominations or whatever more will see me no more. Yet ye shall see me, the church, the believer. For I, personal pronoun is right. I will be with you, even in you, unto the end of the world. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. You see it? संप्रदाय या जो कुछ भी और है, मुझे अब और नहीं देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे। कलीसिया, विश्वासी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सर्वनाम सही है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक तुम में रहूंगा, संसार के अंत तक। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या आप इसे देखते हैं?
Then if that was Christ's Holy Spirit came on the day of Pentecost that did those things, if Christ's Holy Spirit been pushed out here, Christ's Holy Spirit is still holding in here, Christ's Holy Spirit still holding here, on down here and to the end of the world. Amen. तो यदि यह मसीह का पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन पर उतर आया जिसने उन चीजों को किया, यह मसीह का पवित्र आत्मा रहा है, यहाँ आगे बढ़ता गया। मसीह का पवित्र आत्मा अब भी यहाँ पकड़े हुए था, मसीह का पवित्र आत्मा अब भी यहाँ पकड़े हुए था, यहाँ आगे संसार के अंत तक। The same Holy Spirit that filled Paul with the Holy Ghost and the things that he done will fill this one. Arenas full of the Holy Ghost, fill Martin full of the Holy Ghost, the rest of them full of the Holy Ghost, and fill you and I full of the Holy Ghost, and it's the Pentecostal blessings from one church age to the other. वही पवित्र आत्मा जिसने पौलुस को पवित्र आत्मा से भर दिया और वे चीजें जो उसने की, जो इस एक एरेनियस को पूर्ण पवित्र आत्मा से भर देगा, मार्टिन को पूर्ण पवित्र आत्मा से भर देगा, बाकी सभी को पवित्र आत्मा से भर देता है, और ये आपको और मुझे पवित्र आत्मा से भर देता है। और यह एक पेंटिकॉस्टल की आशीष एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तक है। Alpha and Omega, the end and the beginning and all. Amen. Root and offspring of David, morning star, rose of Sharon, lily of the valley, whatever, Lord. Father, Son, Holy Ghost, He that was, which is, and shall come, Alpha, Omega, all. All in all. Amen. Oh, my, that would make me sing a song. Amen. अल्फा और ओमेगा, अंत और आदि और सब, दाऊद का मूल और वंश, भोर का तारा, शारोन का गुलाब, सोसन का फूल, वो जो भी कुछ भी और है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वह जो था, जो है और आने वाला है, अल्फा, ओमेगा, सब मिलाकर। ओ प्रभु, यह मुझे एक गाना गाने को लगाता है। Praise the Lord. Oh, who do you say that I am? Said Jesus. From whence did you say that I came? Do you know my Father, or can you tell His name? He said, I'm Alpha and Omega, the beginning from the end. I am the whole creation. And Jesus is the name. ओ तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? यीशु ने कहा, कहाँ से तुमने कहा कि मैं आया? क्या तुम मेरे पिता को जानते हो, या तुम उसका नाम बता सकते हो? उसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अंत से आदि, मैं सारी सृष्टि हूँ, और यीशु मेरा नाम है। I am that spoke to Moses in a burning bush of fire. I am the God of Abraham, the bright morning star. Right. I am the rose of Sharon. And from whence did you say that I came? I am the whole creation. But Jesus is the name. मैं हूँ जिसने मूसा से अग्नि की जलती झाड़ी में बात की। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, वो चमकता और सुबह का तारा, ये सही है। मैं शारोन का गुलाब हूँ, और कहाँ से तुमने कहा कि मैं आया? मैं सारी सृष्टि हूँ, लेकिन यीशु मेरा नाम है। All the family in heavens and earth tied into that one universal, blessed, holy, Ghost-filled, chopped down, named by the Holy Ghost, spoke by the Holy Ghost, born by the Holy Ghost, name. Amen. Right. स्वर्ग और धरती के सारे परिवार उस एक के अंदर जुड़ते हैं। विश्वव्यापी, धन्य हुए, पवित्र आत्मा से भर गए, नीचे उतरे, पवित्र आत्मा के द्वारा नामांकित हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा बोले, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे, उस नाम के अंदर। ये सही है। God given it all, the family in heaven and earth, and everything, and every knee shall bow to that name, and there's not another name given under heaven whereby man must be saved. Amen. Not perhaps ought to be, but must be saved. Yes. Oh, I love it. It's just good. परमेश्वर ने इसे स्वर्ग और धरती के सारे परिवार को दिया है, और इसमें का सब कुछ, हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा, और वहां आकाश के नीचे कोई और एक नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्यों को बचाया जाना चाहिए। न ही ऐसा कि शायद ऐसा होना चाहिए, लेकिन अवश्य ही बचाया जाना है। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। यह बस अच्छा है।